Hello dear students, today in this video we are going to understand the concept of cost. Now what is cost? Cost is the expenditure incurred by a firm on factor inputs such as land, labor, etc. as well as non-factor inputs such as raw material for a given output of a commodity. Now if we talk about the types of cost, then there are different types of cost. Then first of all talk about explicit cost and implicit cost. Explicit cost is the cost of purchasing inputs from the market, while implicit cost is the cost of using self-owned inputs. Now let us take an example to clear both of the cost. Now first, owners on salary. हमें ध्यान रखना है एक्सप्लिसिट कोस्ट वो है जिसमें प्रोड्यूसर पैसा मार्केट में खर्च करता है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो है जिसमें एस्टिमेटेड खर्चा होता है लेकिन खुद की चीज़ों पर होता है, लाइक ऑनर्स ऑन सैलरी. ये ऑनर्स की खुद की जो सैलरी है वो मार्केट में पे नहीं करेगा. दैट मीन टू से इफ यू टॉक अबाउट दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. एंड वेजेस पेड टू द वर्कर्स हायर्ड फ्रॉम द मार्केट. अब क्योंकि वेजेस हम वर्कर्स को दे रहे हैं और ये कहाँ से हायर किए गए हैं, मार्केट से हायर किए गए हैं, तो इन पर जो खर्चा होगा दैट विल बी explicit cost. I hope dear students the concept of explicit cost and implicit cost is clear to you all. Now let us understand explicit cost and implicit cost with a numerical example. Let us understand the numerical example. Leaving a job of rupee 25,000 per month, a person started his own sweet shop. Using his own shop for which he could have earned rupee 8,000 per month. He pays rupee 50,000 for purchasing and hiring inputs from the market. Find cost of production in terms of explicit and implicit cost. Now cost equals to explicit plus implicit cost. Explicit cost is the cost of purchasing or hiring inputs from the market, while implicit cost is the cost of using self-owned inputs. Now look at the point. He left his job. The owner left his job for rupee 25,000 per month. मीन्स ऑनर सैलरी क्या होनी चाहिए 25,000. तो ऑनर सैलरी किस में जाती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में जाती है. नाउ पर्सन ने अपनी स्वीट शॉप स्टार्ट की और जो शॉप थी अगर वो उसको रेंट पर देता तो 8,000 पर मंथ अर्न कर सकता था. यानी कि उसकी खुद की सेल्फ ऑन्ड शॉप का जो रेंट है, एस्टिमेटेड रेंट है, वो भी कितना है 8,000. ये भी क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, क्योंकि हमने समझा है इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ऑन्ड इनपुट. क्योंकि वो दुकान पर खुद काम करने वाला है तो उसकी सैलरी 25,000 और वो खुद अपनी ही दुकान को यूज़ कर रहा है तो उसकी कॉस्ट 8,000. तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाती है. नाउ ही पेज 50,000 फॉर परचेजिंग और हायरिंग इनपुट्स फ्रॉम दी मार्केट्स. मार्केट से जो भी परचेज किया उस पर टोटल खर्चा कहलाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. कितना होता है 50,000. तो हम टोटल कर लेते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि 50,000 प्लस 25 प्लस 8,000, दोनों क्या बन जाती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट बन जाती है. तो टोटल कितना आता है 50,000 प्लस 33,000. दैट मीन टू से rupee 83,000 will be the cost of production in terms of explicit cost and implicit cost. I hope dear students the numerical example is clear to you all. Now dear students, let us talk about money cost and real cost. Money cost is the expenditure incurred by a firm on the purchase of inputs from the market, while real cost is the sacrifices and efforts of the owner of a firm in producing एंड सप्लाइंग ऑफ अ कमोडिटी. इट मीन्स एक प्रोड्यूसर जो भी पैसा बाजार में खर्च करता है ये सारा खर्च कहलाता है मनी कॉस्ट. लेकिन एक चीज़ को प्रोड्यूस करने से लेकर सप्लाई करने तक एक प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. इन सब की एस्टिमेटेड वैल्यू कहलाती है रियल कॉस्ट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट शॉर्ट रन कॉस्ट. शॉर्ट रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड while some are variable. So short run cost, it has two components. The first one fixed cost and the other one variable cost. Fixed cost is the expenditure incurred by a firm on fixed factors of production, while variable cost is the expenditure incurred by a firm on variable factors of production. Now if we talk about the difference, it is the expenditure on fixed factors, it is the expenditure on variable factors. It does not change with the change in output, while it changes with the change in output. When output is 0, fixed cost
remains constant as it does not change with the change in output. And when output is 0, variable cost is also 0 as it changes with the change in output. The alternative name of fixed cost is supplementary cost, while the alternative name of variable cost is prime cost. I hope, dear students, the concept of money cost, real cost and short run cost is clear to you all. Now let us understand the concept of total cost, total fixed cost and total variable cost. Now dear students, what is total cost? TC. It is the sum total of expenditure incurred by a firm on fixed factors as well as variable factors of production. And it is the sum total of total fixed cost and total variable cost. Now what is total fixed cost? It is the sum total of expenditure incurred by a firm on fixed factors of production. And what is total variable cost? It is the sum total of expenditure incurred by a firm on variable factors of production. Now let us understand total cost, total fixed cost and total variable cost with the help of a table. Now look at this. Output is given 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now this is total cost. Total cost is the sum total of total fixed cost and total variable cost. तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? TC is equals to TFC plus TVC. Now TFC is the sum total of expenditure incurred by the firm on fixed factors of production and it is measured as TC minus TVC. Now what is TVC? TVC is the sum total of expenditure incurred by the firm on variable factors of production and the formula is TC minus TFC. यानी कि अगर TC निकालना है तो TFC और TVC को टोटल करना है, ऐड करना है. अगर TFC निकालना है तो TC में से TVC को माइनस करना है और अगर TVC निकालना है तो TC में से TFC को माइनस करना है. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. हमने इस टेबल में लिया है कि मान लीजिए हमने TC लिख लिया. TC हमने यहाँ एज्यूम कर लिया है. 0 आउटपुट पर 10, 1 पर 20, 2 पर 28, 3 पर 34, 4 पर 38, 5 पर 42 एंड 6 पर 48. तो अगर हमसे कहा जाए कि इस दिए गए क्वेश्चन से आप TVC और TFC निकालें तो देखिए TFC क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के हर लेवल पर कांस्टेंट होती है और अगर आउटपुट 0 होता है तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी 0 नहीं होती. नाउ देखिए, अगर हम यहां देख रहे हैं तो आउटपुट 0 होने पर भी टोटल कॉस्ट आ रही है. ठीक है, ये टोटल कॉस्ट कहलाती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. यानी कि व्हेन आउटपुट इज 0, जो भी टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होती है. तो आउटपुट 0 होने पर भी अगर खर्च आ रहा है तो समझ लीजिए फिक्स्ड फैक्टर्स पर होने वाला खर्च है और ये होती है TFC. और TFC प्रोडक्शन के हर लेवल पर कांस्टेंट बनी रहती है. तो आप देख रहे हैं कि TFC हमने निकाल लिया और ये क्या है? हर लेवल पर कांस्टेंट बनी हुई है. नाउ हम बात करते हैं TVC क्या है. TVC का आउटपुट से पॉजिटिव रिलेशन होता है. अगर आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होती है, बट अगर आउटपुट इंक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है. तो आप यहाँ देख रहे हैं आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है? 0. लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है. अब अगर हम TFC और TVC इन दोनों को ऐड कर दे तो TC बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का टोटल होता है 10, दैट इज TC. 10 प्लस 10 दैट इज 20, 10 प्लस 18 दैट इज 28, 10 प्लस 24 दैट इज 34. और ऐसे अगर हम TFC और TVC को ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है TC. अब अगर किसी वजह से हमें TFC निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम TC में से TVC माइनस कर देंगे. क्या निकल जाएगा? TFC यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा. तो आप यहां देखिए TC माइनस TVC, तो 10 माइनस 0 दैट इज 10, 20 माइनस 10 दैट इज 10, 28 माइनस 18 दैट इज 10, 34 माइनस 24 दैट इज 10. और ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं? TFC टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं. अब अगर आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है देन आप क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा. तो ये तो था TC, TFC एंड TVC. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन TC, TFC एंड TVC बाय यूजिंग अ डायग्राम. तो डायग्राम से इसको हम समझेंगे. आप यहां देख रहे हैं डायग्राम पर दो एक्सिस दिए गए हैं. Y एक्सिस जहां हमने TC, TFC और TVC लिया है और X एक्सिस जहां हमने लिया है आउटपुट.
नाउ दिस कर्व, ये जो कर्व है ये है टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। टीएफसी कर्व टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है, टीसी कर्व टोटल कॉस्ट कर्व है, और ये जो टीवीसी कर्व है ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। नाउ सबसे पहली बात हम देखते हैं टीएफसी को। टोटल कॉस्ट होती है, ये जो टोटल कॉस्ट है ये टीवीसी और टीएफसी इन दोनों का टोटल है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और ये प्रोडक्शन के हर लेवल पर आउटपुट कितना भी इंक्रीज हो जाए कितना भी डिक्रीज हो जाए ये क्या बना रहता है, ये कांस्टेंट बना रहता है, प्रोडक्शन के लेवल पर चेंज नहीं होता। नाउ नेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं जब आउटपुट जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का आउटपुट के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ना आप देख रहे हैं कि जब आउटपुट जीरो है तो टोटल कॉस्ट 10 है और टोटल कॉस्ट इक्वल है टोटल फिक्स कॉस्ट के। जब आउटपुट जीरो होती है तो टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती, क्योंकि ये जो टोटल कॉस्ट होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का टोटल होती है। आउटपुट जीरो होने पर ये जीरो होती है लेकिन ये जीरो नहीं होती, इसीलिए टीसी भी कभी जीरो नहीं होती। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है टीसी भी इंक्रीज होती है। अब आप देख रहे हैं कि टीसी और टीवीसी आउटपुट बढ़ने के साथ साथ दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, टीसी भी इंक्रीज हो रहा है और टीवीसी भी, और दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल बने हुए हैं, यानी कि इन दोनों के जो बीच का गैप है वो कांस्टेंट है, क्योंकि द गैप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज टीएफसी एंड टीएफसी इज कांस्टेंट। क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट है तो टीसी और टीवीसी के जो बीच का गैप है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड that the shape of TFC is horizontal line parallel to x-axis and the shape of TC and TVC is inverted S shaped. ये दोनों inverted S shaped है and the reason behind is law of variable proportion. Okay, I hope dear students the concept of TC, TFC and TVC is clear to you all, and the relationship between TC, TFC and TVC is also clear to you all. आज की वीडियो में इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।